Welcome students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss biology class 9 chapter 1 introduction to biology, and this is our first lecture. In this we will discuss what is biology and major divisions of biology and what are different branches of biology. Now first we will discuss what is biology. The word biology consists of two Greek words. जो वर्ड बायोलॉजी है वो टू ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है. एक है वर्ड बायोस और दूसरा है लोगोस. बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी. यानी कि बायोलॉजी हो गया द स्टडी ऑफ लाइफ. बायोस मीनिंग लाइफ and logos meaning study. Biology is the study of living organism. Now, biology is the scientific study of living organism and the interaction with the environment. हम biology में living organism के बारे में study करते हैं और उनके environment में कैसे interaction है उसको भी study करते हैं. It is a branch of science that seeks to understand the structure, function, growth, evolution, and distribution of living organisms, including plants, animals, fungi, bacteria, and viruses. लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, उनकी ग्रोथ कैसी होती है, एवोल्यूशंस क्या है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अपॉन द बायोस्फीयर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चीजें प्रेजेंट हैं वो क्या, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया एंड वायरसेस. नाउ डिवीजन ऑफ बायोलॉजी. There are three main divisions of biology. Number one, zoology. Number two, botany. And number three, microbiology. zoology में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं और बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में और माइक्रोबियोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह उनके बारे में हम स्टडी करते हैं. नाउ फर्स्ट zoology. This study of animal including their structure, behavior, physiology and classification. इनमें हम एनिमल्स के स्ट्रक्चर देखते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं, उनका फिजिकल बिहेवियर देखते हैं, फिजियोलॉजी और क्लासिफिकेशन. It can encompass the study of both vertebrates and invertebrates. इसके अंदर हम invertebrates और vertebrates दोनों तरह के एनिमल्स को डिस्कस करते हैं. Now अब मैं आपको बताता चलूं कि what is vertebrates and invertebrates. Vertebrates वो होते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, जबकि invertebrates वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती. Vertebrates, animal with a backbone. एग्जाम्पल क्या है जी, ह्यूमन, बर्ड्स, फिश, मैमल्स, रेप्टाइल्स, कैट्स एंड डॉग्स. अब बर्ड्स में जैसे ईगल और पैरट्स हो गया, फिश में सैल्मन और शार्क्स हो गए, मैमल्स में एलिफेंट हो गया, रेप्टाइल में स्नेक, टर्टल्स हो गया. ये सारे क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि ये बैकबोन कंसिस्ट करते हैं. इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल विदाउट अ बैकबोन. एग्जाम्पल क्या है जी, इंसेक्ट्स में आंट्स, बीज, बटरफ्लाइज, स्पाइडर्स, worms में earthworms, jellyfish और star. Now the next division is botany. The study of plants including their structure, growth, reproduction and classification. इसमें हम plants के structure पढ़ते हैं, उनकी growth के बारे में पढ़ते हैं, उनकी classification और reproduction. Next है जी microbiology. The study of microorganisms such as bacteria, viruses, fungi and protozoa is known as microbiology. It encompasses the exploration of their structure, function, behavior and their impact on other organisms and the environment. हम इसमें जो है स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर और उनका इम्पैक्ट क्या होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स और उस एनवायरनमेंट के ऊपर जो जहाँ पे वो लिव कर रहे होते हैं, ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ, वो हम सारे स्टडी करते हैं माइक्रोबियोलॉजी. Now branches of biology. First है जी morphology, the science of the form and structure of organism, plants, animals and other forms of life. इसमें हम structure और form of organisms के बारे में स्टडी करते हैं. Next है जी anatomy, the study of internal structure of organism. इसमें हम internal structure किसी भी organism की स्टडी करते हैं. Physiology, the study of how organism function and the processes that occur in their bodies. इसमें हम स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से परफॉर्म करता है, डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर अकर हो रहे होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, उसको हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी.
Now the next is genetics, the study of genes, heredity and genetic variation in living organism. इसमें हम जीन्स की ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जैसा कि हो गया हेयर कलर की जीन हो गई और बाकी जितने भी जीन्स हैं कि वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही हैं और उनमें क्या वेरिएशंस आ रही हैं, वो सारे हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जी एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो क्या है जी? एम्ब्रियो एक सिंगल सेल होता है जो के बाद में डिवेलप होता है इनटू अ फुल बेबी। प्लांटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एज बेस्ड ऑन फोसिल्स। इसमें हम फोसिल सीरीज के बारे में स्टडी करते हैं। Fossils are the remains of plants, animals, fungi, bacteria, and single-celled living things preserved by natural process. Fossils क्या हैं जी? Plants, animal, fungi, bacteria और single-celled living things के remains होते हैं जो कि preserve किए जाते हैं by natural process. Next है जी taxonomy, the science of classification, but more strictly the classification of living and extinct organism. इसमें हम classification पढ़ते हैं of different groups of living organisms। और क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खाली लिविंग थिंग्स स्टडी कर रहे हैं, तो टेक्सोनॉमी में जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसमें हम क्लासिफिकेशन किसकी पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स या एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म की। इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। कोई ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव कर रहा है उसके रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। It examines how organisms interact with each other and with their physical surroundings। में स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है या जिस एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट है उसमें वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। Sociobiology, the study that aims to examine and explain social behavior of insects or animals that make society। इसमें हम histology, the microscopic study of tissues of organism। इसमें हम टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी होती है अबाउट टिश्यूज। नेक्स्ट है जी सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। इसमें हम सेल के स्ट्रक्चर के सेल किन किन ऑर्गेनेल्स पर मुश्तमिल होता है, हर ऑर्गेनेल का फंक्शन क्या होता है, वो सारा स्टडी करते हैं इन सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट है जी पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं जी? पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इन द होस्ट organism and gets its shelter and food from the host and cause harm to its host। पैरासाइट्स क्या करते हैं कि वो अपने होस्ट से शेल्टर भी ले रहे होते हैं, फूड भी होस्ट से ही ले रहे होते हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट वो क्या कर रहे होते हैं? होस्ट को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है जी? द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन थ्रू वेरियस लाइंस ऑफ डिफेंस। इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी का वो डिफेंसिव सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एनी वायरस या इन्फेक्शन। एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फार्माकोलॉजी, द स्टडी डील्स विद ड्रग्स, द स्टडी ऑफ हाउ केमिकल एजेंट्स बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक अफेक्ट बायोलॉजिकल सिस्टम। इसमें हम स्टडी करते हैं कि ड्रग्स या केमिकल एजेंट्स जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं या सिंथेटिक मैन मेड होते हैं उनका क्या अफेक्ट होता है उन बायोलॉजिकल सिस्टम, वो सारा स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। And the last one is biotechnology, the study of the use of biology to solve problems and make useful product that is beneficial for mankind। इसके अंदर हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए हम यूजफुल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं जो कि मैनकाइंड के बेनिफिशियरी हो। Now that's all about for today's lecture. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to your friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future.